Is my voice audible to you? If it is, please reply me with a yes. Thank you. Thanks a lot. Great. Okay. So we'll start with the lecture. We will start with the today's session. In the last lecture, we started chapter number 3, that was physiography and drainage. In that, we started with the physiography part. As I said, physiography means physical feature of a particular country, of a particular place. So in this chapter, we'll be learning about the physiography of India and Brazil. And we started with physiography of India. Okay, and we learned there are 5 physical divisions of India. Okay, now if we talk about 5 physical divisions of India, the first one is Himalayas. The second one was Great Indian Plains or North Indian Plains. The third one is Indian Peninsula. The next one is Coastal Plains, and the last one is Islands. इसमें हम लोग ने सबसे पहला Himalayas किया था. So let's have a quick recap about Himalayas. We started with Himalayas. The first point we learned about Himalayas is Himalayas are young fold mountains. ठीक है, they are called as young fold mountains. Yes. So अभी young fold mountains अगर हम लोगों ने देखा था तो उसमें हमने बोला था कि young क्यों बोला, because they are still growing. ठीक है, Himalayas came into existence because of the convergence of Indo-Australian plate. And yeah, this is a recap, so you will not see the slide. Okay, ये सिर्फ recap है last lecture का, तो slide आपको दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ सुनना ही है. फिर हम लोग जब lecture चालू करेंगे तब slide हम लोग share करेंगे. Okay, so be patient. So Himalayas का पहला point बोला, it is a young fold mountain. Second, it starts from Pamir Knot in Tajikistan and it extends to the eastern Himalayas. Okay, that is Assam Himalayas. Next, we learned there are 4 parallel ranges of Himalayas. ये भी हमने पढ़ा था. Starting from south, it was Shivalik, then it was lesser, then it was greater, and then it was Trans Himalayas. Then we also learned that Himalayas are further divided into 3 divisions, that is Western, Central, and Eastern. Western Himalayas are called as Kashmir Himalayas, Central is called as Kumaun Himalayas, and the last one is Eastern Himalayas are called as Assam Himalayas. ये हम लोग ने Himalayas के बारे में पढ़ा था. Today we'll be starting with the second physical division of India, that is North Indian Plains. So let us start. I'll be sharing my screen with you, so hold for a second. Okay, wait for a second. I'll share my screen with you. There was a technical problem.
Sorry for the inconvenience. We'll start the screening, share screening. Everyone can hear me right now? Okay. Okay. So we'll start with today's session. Okay. We'll start with North Indian Plains. Now, the North Indian Plains कहाँ पर located है इंडिया में? It is located between Himalayas in the north and Peninsula in the south. मतलब हिमालयाज और पेनिनसुला के बीच में जो है उसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. अब ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कैसे फॉर्म हुआ है मालूम है क्या? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लोरेशिया को कोलाइड हुआ तो हिमालयस बना. जब हिमालयस बना ना, तो यहाँ पर बीच में जो ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको, वहां पर बीच में डिप्रेशन फॉर्म हुआ. डिप्रेशन मतलब बड़ा खड्डा फॉर्म हुआ. ठीक है. अब जब ये डिप्रेशन फॉर्म हुआ ना, तो हिमालय से जो रिवर्स आ रहे थे, रिवर्स लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जब रिवर्स आ रहे थे ना, तो दे यूज्ड टू कैरी लॉट ऑफ डिपॉजिट्स, दैट इज सेडिमेंट्स विद देम. और ये सेडिमेंट्स है ना, ये डिप्रेशन में डिपॉजिट करते गए. एंड ओवर द इयर्स, ओवर द मिलियन इयर्स, व्हाट हैपेंड, ये पूरा डिप्रेशन है ना, ये पूरा सेडिमेंट से भर गया. और जब ये डिप्रेशन पूरा सेडिमेंट से भर गया, देन वी गॉट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. एंड नाउ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन हिमालयाज एंड पेनिनसुला. मतलब हिमालय से आप जब पेनिनसुला जाते हैं तो आपको बीच में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लगता है. अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन हिमालयाज एंड पेनिनसुला. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान. अभी वहां पर दिखाया देखो, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. मतलब ये राजस्थान और पंजाब से एक्सटेंड होता है वेस्ट में और खत्म होता है असम में ईस्ट में. ठीक है. Now if we talk about Himalayas, Himalayas is further divided into two parts. ठीक है. अभी इसको कौन डिवाइड करता है? Can you see this black line over here? This is Aravalli Mountain. Aravalli Mountain divides North Indian Plain into two parts. One is Western Plain and one is Eastern Plain. तो ये जो हिस्सा है ये Western Plain हो गया और ये जो हिस्सा है वो Eastern Plain हो गया. Okay. अभी Eastern Plain में ना, there is a river which flows over here with its tributaries. The name of the river is Ganga. तो गंगा यहाँ पर फ्लो होता है और ये गंगा का बेसिन है. इसके लिए इस ईस्टर्न प्लेन को और एक नाम से बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन. ओके. क्योंकि ये गंगा का रिवर बेसिन है. ठीक है. ये जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है ये गंगा का रिवर बेसिन है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन. ओके. नाउ ये जो रिवर गंगा है ना, व्हेन इट फ्लोज ओके फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हेन इट एंटर्स बांग्लादेश, जब ये बांग्लादेश एंटर करता है ना, तो और एक रिवर को मिलता है. उस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र. और ये ब्रह्मपुत्र कहां से चालू होता है? इट अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना. इट एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. आपको दिख रहा है वहां पर वो एक स्टेट ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश. वहां से वो अंदर आता है एंड इट एग्जिट्स फ्रॉम इंडिया एंड इट मीट्स रिवर गंगा. ठीक है. नियर बांग्लादेश. अभी वेस्ट बंगाल के पास में ना गंगा ब्रह्मपुत्र मिलता है और एक बड़ा सा डेल्टा बनता है which is called as गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसको और एक नाम से बोलते हैं, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन फॉरेस्ट है यहाँ पे. ठीक है. इसका नाम क्यों बड़ा है सुंदरबन? बिकॉज यहाँ पर एक ट्री मिलता है जिसका नाम है सुंदरी ट्री. इसके लिए इस फॉरेस्ट का नाम पड़ा है सुंदरबन फॉरेस्ट. इट्स अ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड with an area of 20,500 square kilometer. और ये किससे बना हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास बना हुआ है. ओके. तो ये हो गया अपना नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ठीक है. अभी डेल्टा क्या होता है? हम लोग ने याद है लास्ट टाइम पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, व्हाट इज डेल्टा. डेल्टा जहां पर रिवर एंड होता है वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप में लैंडफॉर्म बनता है. इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा. तो रिवर देखो अपना ट्रिब्यूटरीज, रिवर अपने आप को छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और बीच में देखो लैंडफॉर्म है ग्रीन कलर का. इस पार्ट को बोलता है डेल्टा. डेल्टा इज ऑलवेज फाउंड नियर द एंड, दैट इज द कोस्टल एरिया. जहां पर रिवर खत्म होता है और सी को मिलता है ना, वहां पर आपको मिलेगा डेल्टास. तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. इसको और एक नाम से बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुंदरबंस. क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आएगा, आंसर इन 1 or 2 सेंटेंस में, व्हाट इज सुंदरबन. It is called as Ganga Brahmaputra Delta.
ओके, तो लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, हमने ईस्टर्न पार्ट किया, ईस्टर्न पार्ट को गंगा प्लेन बोलते हैं, तो एक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा कि डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन इन नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन साउथ। फिर सेकंड हम पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन वेस्ट टू असम इन ईस्ट। द टोटल लेंथ अभी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, बट द टोटल लेंथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, ये टोटल लेंथ है, राइट फ्रॉम राजस्थान टू असम। ओके, नेक्स्ट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। लो लाइंग बोलेगा तो कैसे है कि इट इज फ्लैट थ्रू आउट द एरिया, मतलब कैसे कि इट इज इफ यू कंपेयर टू मीन सी लेवल, मतलब सी लेवल के कंपैरिजन पे रहेगा, ऊपर नहीं है, सी लेवल के साथ ही है, फ्लैट है। मतलब अगर यहाँ पर रेनफॉल हुआ ना तो पानी जल्दी भर सकता है, बिकॉज इट्स अ लो लाइंग एरिया। ओके, इफ देयर इज हेवी रेनफॉल यहाँ पर फ्लडिंग हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है, बिकॉज इट्स अ लो लाइंग एरिया। ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। अभी हमने बोला था कि द टू पार्ट्स आर, वन इज लाइंग टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड वन इज लाइंग टू द ईस्ट, जिसको हम लोग गंगा प्लेन बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर फ्लो होते हैं। Next, we learn that most of the part of the West Bengal together constitute near the delta of Ganga Brahmaputra system is known as Sundarbans and is considered to be the largest delta of the world. ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, मैं ये क्यों आपको पॉइंट्स में बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, अ टेक्सुअल क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो ये 4 मार्क क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो यू नीड टू राइट दिस पॉइंट्स। ओके, ये तो मैंने अभी आधा बताया, अभी मैं वेस्ट पार्ट में जाऊंगा। ठीक है, अरावलीज के ये साइड पे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, वेस्टर्न प्लेन्स में कैसा है कि इट इंक्लूड्स पंजाब हरियाणा प्लेन एंड राजस्थान प्लेन। ठीक है, 2 प्लेन्स है यहाँ पे, पंजाब हरियाणा प्लेन एंड राजस्थान प्लेन। Now if you talk about western part of Rajasthan, that is Rajasthan plain, it is mainly covered by desert. ठीक है, जो राजस्थान प्लेन है ये डेजर्ट से कवर्ड है। ठीक है, हमको सबको पता है कि राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया। ओके, इट इज आल्सो नोन एज थार डेजर्ट। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान साथ में था तभी ये थार डेजर्ट बोलते थे, अभी हम लोग इसको थार डेजर्ट नहीं बोलते, हम लोग इसको राजस्थान डेजर्ट ही बोलते हैं या इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान साथ में था तभी वो ज्यादा ऑक्यूपाई करता था, बट अभी वो आधा पार्ट पाकिस्तान में चला गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मरुस्थली। मरुस्थली का मतलब है लैंड ऑफ डेड। अच्छा, मरुस्थली का मतलब लैंड ऑफ डेड, मतलब इधर आके लोग मरते हैं क्या? नहीं। लैंड ऑफ डेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर का जो कंडीशन है, हॉट क्लाइमेट, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पर कैसे है ना, रहने का मुश्किल है। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव ओवर हियर। दिस इज द रीजन। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि पूरा राजस्थान ऐसा है, जो एकदम डेजर्ट एरिया है वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल है, इसके लिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ डेड। इट इज कॉल्ड एज मरुस्थली। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज कवर्ड बाय डेजर्ट। बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि इन दैट इज अराउंड मिलियन ईयर्स अगो, ये जो राजस्थान अभी डेजर्ट है ना, यहाँ पर एक टाइम पे सी हुआ था। सी मालूम है? समुंदर, समुंदर था यहाँ पे। बट बिकॉज ऑफ द रिसेशन ऑफ सी, रिसेशन ऑफ सी मतलब क्या है? सी पीछे जाने चालू हो गया बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये सी पीछे गया और बचा क्या? डेजर्ट। तो इनिशियली राजस्थान में बहुत सारा पानी था, फर्टिलिटी था, बट ओवर द इयर्स वो रिसाइड होने को चालू हो गया और उसकी वजह से क्या हो गया? अभी अपने को डेजर्ट मिला है। ठीक है, और इसका नाम क्यों पड़ा है राजस्थान? बिकॉज इट इज राजाओं का स्थान, राजपूताना। देयर आर मेनी किंग्स हु रूल्ड ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू द नॉर्थ ऑफ दिस डेजर्ट लाइज द प्लेन्स ऑफ पंजाब। पंजाब और हरियाणा प्लेन्स है, एंड द रीजन स्प्रेड्स टू द ईस्ट ऑफ अरावलीज। ठीक है, नाउ ये पंजाब क्यों बोलते हैं, मतलब इसका भी एक रीजन है। पंजाब मतलब पंज एंड अब मतलब रिवर्स, पंज मतलब 5। ठीक है, यहाँ पर है ना 5, ये जो पंजाब बना है ना, ये 5 रिवर्स के डिपोजिशन से बना हुआ है, इसके लिए नाम पड़ा है पंजाब। पंज मतलब 5, अब मतलब रिवर्स। ठीक है, और वाटर बोलते हैं उसको प्रिसाइसली। तो ये 5 रिवर से बना है। कौन से रिवर से बना है? सतलुज और उसके ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज अरावली। ओके, अरावली के ये साइड में पंजाब हरियाणा आता है और अरावली के ईस्ट में आता है अपना गंगा प्लेन्स। These plains have been formed as a result of deposition of work of Satluj and its tributaries. मैंने बोला ना 5 रिवर्स है, सतलुज और उसके ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर ये पंजाब और हरियाणा प्लेन्स बनाया है। एंड द स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज टुवर्ड्स वेस्ट। अगर आप देखेंगे तो इसका स्लोप है वेस्ट के तरफ।
पंजाब का जो स्लोप है पंजाब हरियाणा का, इट इज टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब पाकिस्तान की तरफ. ओके. And agriculture is largely practiced over here. Why? Because one of the most fertile soil. अभी ये जो alluvial soil यहाँ पर कौन सा soil मिलता है? Alluvial soil. ये alluvial soil ये पंजाब प्लेन में कैसे आया? Because of the deposition of river गंगा, ब्रह्मपुत्र and Indus. और ये rivers है ना continuously नया alluvial soil लेके आते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पर का fertility बहुत अच्छा है. You can grow any tropical or temperate region crops over here. जिसके लिए यहाँ पर आपको agriculture main occupation दिखेगा. Or being a flat land, let me tell you, 40% of population of our country lives in this North Indian plains. Why? Because flat land है, agricultural activities है, mining होता है, industrial है, तो यहाँ पर development है. इसके लिए 40% of population of our country stays over here. और एक चीज है, नॉर्थ इंडियन प्लेन में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर मालूम है ना, जमीन के नीचे का पानी. 33% of groundwater is found in North Indian plains. Why? Because the rocks over here are permeable. Permeable मतलब क्या है? यहाँ पर पानी percolate होता है जमीन के नीचे. ठीक है, इसके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर है. इसके लिए एग्रीकल्चर करना इजी यहाँ पे, बिकॉज अगर आपके पास रिवर्स का पानी नहीं है तो आपके पास ग्राउंड वाटर का पानी भी है. ओके. तो वेस्टर्न प्लेन में एग्रीकल्चर इज प्रोमिनेंट. पंजाब इज कॉल्ड एज ग्रैनरी ऑफ आवर कंट्री. सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर वहां पे ही होता है. So this was about North Indian plains, ठीक है, and Western plains. Again यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखना है. राजस्थान is also called as Thar Desert or Marustari. Marustari means land of dead, and most of Rajasthan is occupied by desert. Punjab plain कौन से रिवर और ट्रिब्यूटरी से बना है? सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. रिवर सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस. जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज क्या है और कैसे फ्लो होते हैं. अच्छा, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को दो हिस्सों में कौन डिवाइड करता है? अरावली माउंटेन. अरावली माउंटेन डिवाइड्स राजस्थान नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इनटू वेस्ट पार्ट एंड ईस्ट पार्ट. ईस्ट पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज गंगा प्लेन्स. तो ये था अपना नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेनिनसुला, द इंडियन पेनिनसुला. अभी आपने सुना रहेगा ये पेनिनसुला, बट इसका मीनिंग क्या है? पेनिनसुला मीन्स almost island. What is peninsula? Almost island. Almost island क्यों बोलते हैं? Because island का definition क्या है? Island is a piece of land which is covered by water from all the sides. That is 4 sides. But peninsula अगर आप ध्यान से देखेंगे, it is covered by water from 3 sides. तो it is called as almost island. मतलब island होते होते रह गया. अब अभी इंडिया का अगर देखेंगे तो इंडिया को वेस्ट से अरेबियन सी ने कवर किया है, ईस्ट से बे ऑफ बंगाल ने कवर किया है, और साउथ में इंडियन ओशन ने कवर किया है, और ऊपर से देयर इज लैंड. इसके लिए अपने को बोलते हैं पेनिनसुला. यहाँ पर दिया देखो डेफिनेशन. पेनिनसुला मींस व्हेन एन आइलैंड व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. Example, India is covered by 3 sides, that is Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean. This is called as peninsula. Now let me tell you, peninsula is one of the oldest landform in our country. ठीक है, सबसे पुराना और सबसे स्टेबल है इंडियन पेनिनसुला. इंडियन पेनिनसुला का is around 3600 million years old. Indian peninsula is 3600 million years old and stable. Stable क्यों बोला? Because अभी पूरा फॉर्म हो गया और कुछ फॉर्म होने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं हिमालयस का बात करूंगा ना, तो हिमालयस is unstable because वो अभी भी ग्रो हो रहा है. यंग बोले ना, अभी भी ग्रो हो रहा है, तो वो अनस्टेबल है. बट पेनिनसुला इज स्टेबल. इधर जो फॉर्मेशन होने का था वो हो गया, अभी कुछ नहीं होगा यहाँ पे. सो इट्स अ स्टेबल एंड द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म. मतलब जब अर्थ क्रस्ट बना था ना, याद है हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. तो जब अर्थ क्रस्ट बना था ना, तभी पेनिनसुला बन गया था. इतना ओल्ड है. ठीक है, तो पेनिनसुला इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ आवर कंट्री. ओके, नाउ लेट अस सी एंड लर्न अबाउट इंडियन पेनिनसुला. फर्स्ट थिंग इज the area lying to the south of North Indian plains. मतलब जो बाउंड्री है नॉर्थ का पेनिनसुला, इट इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अगर आप नीचे देखेंगे तो पेनिनसुला चालू होता है. देखिए, नॉर्थ ऑफ इंडियन प्लेन्स एंड टेपरिंग. टेपरिंग बोलेगा तो पॉइंटिंग. टेपरिंग बोलेगा तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडियन ओशन. कैन यू सी अ इन्वर्टेड ट्रायंगल ओवर हियर, अपसाइड डाउन? अगर आप पेनिनसुला को ध्यान से देखेंगे तो इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल जिसका पॉइंट, जिसका जो
पॉइंट है, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स इंडियन ओशन. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इंडियन पेनिनसुला. Now, if you talk about Indian Peninsula, it consists of many plateaus. For example, there is Maharashtra plateau. अभी ये डिटेल में दिया नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में. If you talk about Indian Peninsula, it is Maharashtra plateau, Karnataka plateau, Telangana plateau, बुंदेलखंड प्लेटो, बाघेलखंड प्लेटो, मालवा प्लेटो, मारवाड़ प्लेटो. जब हम लोग मैप रीडिंग करेंगे ना तभी मैं आपको ये सब बताऊंगा, बट ये एग्जांपल्स हैं. और हिल रेंजेस भी है यहाँ पे. हिल रेंजेस मतलब महादेव हिल, विंध्या हिल, ठीक है, विंध्या रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस. ठीक है, तो ये सब रेंजेस भी है. तो इट इज कवर्ड बाय मेनी प्लेटोज एंड मेनी हिल रेंजेस. ओके, अभी जो पेनिनसुला है ना, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स. क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स. और जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, महाराष्ट्र कर्नाटका वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटो. So plateau, Indian Peninsula is further divided into two parts. One is Central Highlands and Deccan Plateau. ये भी दिया नहीं है, but I'm just giving an information about this. It is further divided into two parts. Next one is Aravalli in the north is the oldest fold mountain in the world. Okay, मतलब जब पेनिनसुला बना था ना, साथ में अरावली माउंटेन्स बना था. सबसे ओल्डेस्ट है ये. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, मैथ्स का कॉलम में पूछा जाता है. अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड. ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली. मतलब उसका एक्सटेंशन दिल्ली तक जाता है. स्टार्ट होता है गुजरात से, राजस्थान होता है, फिर जाता है दिल्ली. और अरावली का हाईएस्ट पीक है माउंट अबू, अगर आपने सुना रहेगा, फेमस टूरिस्ट स्पॉट. ठीक है, माउंट अबू और गुरु शिखर. Now it includes a series of plateaus bordering the plain. अभी आपने देखा रहेगा अरावली, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि अरावली डिवाइड्स नॉर्थ इंडियन प्लेन इनटू टू पार्ट्स. तो उसका जो प्लेटोज है ना, इट इज लाइक अ बॉर्डर फॉर वेस्टर्न प्लेन एंड ईस्टर्न प्लेन. ओके, नेक्स्ट इज इफ यू टॉक अबाउट विंध्या एंड सतपुड़ा. अरावली के अगर नीचे जाएंगे, महाराष्ट्र के ऊपर आएंगे, तो इट इज विंध्या एंड सतपुड़ा. इफ यू सी दिस पिक्चर प्रॉपर्ली, कैन यू सी विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज ओवर हियर? सो विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज is also a part of Deccan Plateau as well as Indian Peninsula in the central part and hilly regions of Western Ghats and Eastern Ghats. Can you see Western Ghats and Eastern Ghats? महाराष्ट्र के बाजू में जो है वो वेस्टर्न घाट है, और महाराष्ट्र के इस साइड में जो है वो ईस्टर्न घाट है, जो उड़ीसा की तरफ है. अभी ये वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आर अगेन अ पार्ट ऑफ पेनिनसुला. ओके, इस पे गिव रीजन भी है, टेक्सचुअल गिव रीजन भी है, जिसका हम लोग आंसर बाद में करेंगे. वेस्टर्न घाट्स है ना, इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर. मैं थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में बताता हूँ. वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर, ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन. इसका रीजन क्या है कि वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स निकलते हैं ना, वो ईस्ट में जाके ईस्टर्न घाट्स को इरोड करते हैं. इसके लिए ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन. बट वेस्टर्न घाट्स के जो रिवर्स है ना, दे आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट. इसके लिए उनको इरोजन करने का टाइम मिलता नहीं है. तो जो रिवर्स वेस्ट में जाते हैं ना, अरेबियन सी में, वो लोग इरोड नहीं कर पाते. बट जो रिवर्स वेस्टर्न घाट से ईस्ट में जाते हैं, लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या करते हैं? ईस्टर्न घाट्स को इरोड करते हैं एंड देन दे गो इनटू बे ऑफ बंगाल. इसके लिए ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूअस, वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस. ओके, अभी ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है ना, ये दोनों है ना एक दूसरे को नीचे मिलते हैं. एक जगह है जिसका नाम है नीलगिरी माउंटेन्स. ठीक है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दे मीट ईच अदर नियर नीलगिरी माउंटेन्स like a knot, and this is a pass, a bridge for animals to go from eastern ghats to western ghat. याद रखना, ये जो एनिमल्स है ना, ये ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट्स कैसे जाते हैं? थ्रू दिस ब्रिज जो नीचे है नीलगिरी माउंटेन्स के यहाँ पे. ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स क्या करता है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़ता है. ठीक है, तो वहां से बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, दे गो फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट पीक हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन, जब मैप का हम लोग मैप रीडिंग करेंगे. ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे. अभी कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ. यहाँ पे है ना छोटा नागपुर प्लेटो भी है, जो अभी नहीं दिया, बट छोटा नागपुर प्लेटो इज लोकेटेड इन झारखंड. इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन प्लेटो. छोटा नागपुर प्लेटो का खासियत क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलता है आपको. ठीक है, इट इज रिच इन मिनरल्स. ये हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, बट मैं बता रहा हूँ छोटा नागपुर प्लेटो इज रिच इन मिनरल्स. इट इज लोकेटेड इन इंडियन पेनिनसुला. अच्छा, पेनिनसुला किससे बना है? वॉल्केनिक इरप्शन से. जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तभी लावा बाहर आया था पेनिनसुला में,
और वो लावा जब ठंडा हो गया था तो इट टर्न इनटू द सरफेस व्हिच वी सी नाउ. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट्स के यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दंडक आरण्य. ठीक है, ये दंडक आरण्य इज अ संस्कृत वर्ड. ठीक है, दंडक आरण्य, आरण्य मतलब फॉरेस्ट, दंडक मतलब पनिशमेंट. ड्यूरिंग, मैं अगर माइथोलॉजी का बात करूं, ड्यूरिंग रामायण, तो ये दंडक आरण्य फॉरेस्ट क्यों रखा था कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको ये फॉरेस्ट में पनिशमेंट देने के लिए भेजते थे. ये इंटरेस्टिंग था. तभी पनिशमेंट देने के लिए ये फॉरेस्ट में भेजते थे, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाज फुल ऑफ डीमंस एंड क्रीचर्स. तो यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल है, तो तभी ये क्रिमिनल्स को वहां पर भेजते थे. इवन राम was residing, Lord Ram was residing in Dandakaranya. लेकिन अभी ये छोटा सा हिस्सा है at present, and Dandakaranya is mainly used for extracting minerals. That's it. तो ये था इंडियन पेनिनसुला. If you talk about Indian Peninsula, हम लोगों ने ये पॉइंट्स कवर किए हैं. शॉर्ट नोट में पूछते हैं इंडियन पेनिनसुला फॉर 2 marks, you have to write any 4 points. तो आज के डेट में हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़ा और इंडियन पेनिनसुला पढ़ा. So altogether we covered 3 physiographical division of India. Okay. Now, if you have any doubts regarding today's lecture, you can ask me now. So I have given you like 5-10 minutes for the doubts thing. Yes. Any doubts regarding today's chapter? Okay. Yeah, Dandakaranya is a Sanskrit word. It means a forest of punishment. एक डाउट आया सर, व्हाट इज द लोएस्ट surface area? The lowest surface area is found in Kerala, which is called as Kuttinad, which is in minus. The highest is K2 in India and the lowest is Kuttinad. Nepal was never removed from India. It was a different country altogether. It was never a part of India. The total length of North Indian plain is 2,400 kilometers, right from west to east. In delta, there are no minerals. It is a fertile soil. Agriculture activities happens in delta. Mining activities nahi hota hai. How old is Indian Peninsula? The Indian Peninsula is 3,600 million years old. Okay, the island means which is covered by water from 4 sides, and peninsula means which is covered by water from 3 sides. Okay, this is the difference between an island and a peninsula. See, Aravalli and Delhi range is both together it's same. Aravalli का जो extension है वो दिल्ली तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं दिल्ली range. Aravalli mountain का ही extension जो है वो दिल्ली range तक पहुंचता है. ठीक है, so it is not different, it is altogether same. Almost 70 to 80% of Rajasthan is covered by desert. Yes, Kanchenjunga is also in India. It is located in Sikkim. Kanchenjunga is a peak which is located in Sikkim, Himalayas. There is no full form for K2. Difference between island and peninsula मैंने अभी बताया था कि island means covered by water from 4 sides. Peninsula means covered by water from 3 sides. We'll talk about river Satluj when we'll be doing a river systems of India. तभी आपको पता चलेगा कि सतलज exactly कहाँ पे है. So rivers के बारे में हम लोग river system में detail में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा.
Lakshadweep is not a continental island. There are many peninsulas in the world. There is no specific number. Okay, tomorrow, if we talk about geography lecture, the homework for geography lecture is you have to write the whole paragraph of North Indian plains. As I said, it is an important 4-mark question. The question रहेगा, explain the characteristics of North Indian plain, and you have to write the whole paragraph of North Indian plain 2 times, and you have to learn it. Okay.